ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤੇ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਐਬੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ, ਇਹ ਉਪਕਰਮ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਉਪ ਸੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਹਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਥਮ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੇ ਮਹਤ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ, ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ, ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੈਸੇ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੈਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ तमाम ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। तो शरीर ਦਾ मूल चूंकि मां बाप ने, तो आद काल तो लोकी मनुखता साडे देश दे मां बाप दे कदमां ते मस्तक रखदी आई है। मां नू मत्था टेकदी आई है, पिता नू सजदा करदी आई है।
क्योंकि मूल तो वड्डा कुछ ही नहीं। जे जड़ा ही नहीं ते डालियां किथे, जे जड़ा ही नहीं ने ते फुल ते फल किथे। मूल वड्डा है, मूल महान है। और धार्मिक दुनिया दे गुरु पूज है, गुरु महान है, गुरु समर्थ है। क्योंकि गुरु ही नहीं तो फिर परम रस किथे, नाम दा रस किथे ते परमात्मा दा अनुभव किथे। तो जैसे संसार दी सारी सिरजना मां बाप तो आरंभ होंदी है, धार्मिक दुनिया दा सारा आनंद गुरु तो चलदा है, गुरु तो मिलदा है। पर हुण इत्थे सवाल खड़ा हो जांदा है, गुरु कौन है? मां बाप परमात्मा ने दिते ने, क्या गुरु भी परमात्मा ने दिता है? सतगुरु दा श्लोक तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, गुरु भी परमात्मा दी देन है, जैसे कि मां बाप परमात्मा दी देन है। तो इस जीवन दे पवन जो है गुरु है, पानी पिता है, धरती मां है। इसका निखेड़ा इस तरीके नाल करना पएगा कि बोलण नाल संबंध जुड़दे ने ते पवन करके असी बोलदे हां, देही माटी बोले पौण। पौण ही नहीं ते बोलना नहीं, ते जे बोलना ही नहीं ते संबंध ही नहीं। बोल के संबंध जुड़दे ने संसार नाल, बोल के ही संबंध जुड़दे ने निरंकार नाल, परमात्मा नाल। जो जिस व्यक्ति नाल जितनी लंबी चौड़ी बोल चाल रखदा है, उस बोल चाल तो अंदाजा लग जाता है इत्थे उतना ही गूढ़ा ते लंबा संबंध है। ते जो जितना ज्यादा जप करी जा रहा है, जो जितना ज्यादा बाणी बोली जा रहा है, जो जितना ज्यादा भजन गायन कीती जा रहा है, शब्द गायन कीती जा रहा है, बोली जा रहा है, उसदे बोलण नाल उतना ही परमात्मा नाल गूढ़ा संबंध जुड़ जाता है, गूढ़ा रिश्ता जुड़ जाता है। पर चूंकि बोलना पवन करके है, इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पवन गुरु है ते बोलन हार परम गुरु एही। परम गुरु एही बोलन वाला है। ते कौन बोलदा है? देही माटी बोले पवन। तत्तां दे चों ए तत्त पवन सिरमौर है। फिर पानी पिता माता धरत महत, मां की रकत पिता बिंद धारा। पिता दा पानी, माता दी मिट्टी। पानी मैला, माटी गोरी ते पिता दा पानी। और इस तरीके नाल पवन दा सुमेल इस शरीर दी बनतर। शरीर दे च पवन गुरु, शरीर दे च पानी पिता, और शरीर दे च जो धरती दा हिस्सा है ये मां है। उंज भी आदि काल तो साडे देश दे च धरती नूं माता ही कहंदे आए ने, और देश नूं मातृ भूमि कहंदे आए ने। ये मां है, ये धरती मां है। जिथे मनुख दा जन्म होया उत्थों दी धरती मां है। ऐसा क्यों आख्या गया? दरअसल जो मनुख दा ये ढांचा है, अगर इसनूं पूर्ण तौर ते देखिए, जो बुढ़ा है कुछ दिन पहले जवान सी, जो जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, जो बच्चा है कुछ दिन पहले मांस का लोथड़ा सी, जो मांस का लोथड़ा है, कुछ दिन पहले बिंद सी, जो बिंद है, कुछ दिन पहले खून सी, जो खून है, कुछ दिन पहले खुराक सी, जो खुराक है, कुछ दिन पहले मिट्टी सी। मिट्टी मूल है शरीर दा। तो मिट्टी यात्रा ते चली, मिट्टी विचों निकली खुराक, खुराक तो ही खून बनया। अगर कोई खुराक ना खाए खून कित्थों बनेगा? तो मिट्टी विचों निकली खुराक, खुराक तो बनया खून, खून तो बनया बिंद, बिंद तो बनया मांस दा लोथड़ा, ते मांस दे लोथड़े तो ही बनया बच्चा, फिर जवान, फिर बुढ़ा, ते बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तो शरीर दा मूल तत्व ये धरती है, और इस धरती दे इस मिट्टी दे पानी है, ताकि इस मिट्टी दे हरकत होवे। ते पानी ते मिट्टी दा संबंध जोड़ के रखे है पवन ने।
तो ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ, ਪਵਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ। तो महाराज कहते ने क्योंकि बोलना पवन करके है, पवन गुरु है, और ये पानी पिता है, ये धरती मां है, इस शरीर दे गुरु विराजमान है, माता विराजमान है, पिता विराजमान है, और इस ढंग नाल इस शरीर की सिरजना हुई, रचना हुई। महाराज कहते ने दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। ये दिन ते रात खिडावे ने, दाई है, दाया है। आखिर जो कुछ भी असी करते हैं दिन दे अंदर करते हैं, दिन रात दे च ही ये जगत दे जीव खेडते ने। रात नूं विश्राम करते ने, दिन नूं धंधा करते ने, चोग चुगते ने, रिजक लभदे ने। गरज के दिन ते रात मनुख नूं अपने विच उलझाई रखते ने। खिडावे दा कम की है? बच्चे दा मन परचाई रखना, बच्चे नूं उलझाई रखना, बच्चे नूं खेड दे च लीन रखना। तो ये दिन ते रात दोवें खिडावे ने। दाई लोरी दे के बच्चे नूं सुला देंदी है, दाया खिडावा दिन भर खिडौणियां नाल बच्चे नूं खिडांदा है। तो दिन दाया है, खिडावा है, और रात दाई है। ये मिठी लोरी दे के जीवां नूं सुला देंदी है। पशु पंखी मनुख कायनात दा जर्रा जर्रा सो जांदा है, और दिन खिडावा है। हर पासे मनुख भजदा है, दौड़दा है, जीव भजदे ने, दौड़दे ने, और ये सारा दिन अपना यही हरकत दे मनुख रहिंदा है। कदी इस पासे जा, कदी उस पासे जा, कदी कुछ कर, कदी कुछ कर। ये सारी हरकत चूंकि दिन दे अंदर है, तो सहज कहंदे ने दिन खिडावा है, ते विश्राम रात नूं है। इस वास्ते रात दाई है। ये ते निंद्रा दी मिठी लोरी ही जो ऐसी देंदी है कि सारी कायनात नींद दी आगोश दे चली जाती है। इस वास्ते साहब कहने दिन ते रात दाई ते दाया ने खेले सगल जगत। इहदे च ही तमाम जगत दे जीव खेड रहे ने, विचर रहे ने। चंगियां आईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर। हुण जीवां दियां जड़ियां चंगियाईयां ने ते बुराइयां ने, ये धर्म दी हजूरी दे वाचियां जांदियां। ऐसा नहीं कि जो बुरा कर छड़िया है कर छड़िया, करके छड़िया नहीं, करके कोल है। चंगियाई कीती है करके छड्डी नहीं, वो कोल है, ओदा सूक्ष्म हिस्सा कोल है, ओदे संस्कार कोल ने। ते ये धर्म दे द्वार दे पढ़े जाणगे। धर्म परमात्मा अकाल पुरख दे द्वार ते पढ़े जाणगे। भाव उस अकाल पुरख दा ऐसा एक नियम है कि मनुख जो कुछ करदा है उन्होंने वाचिया जांदा है, ते उहदे मुताबिक ही जीवन रेखा अगे दी तोरी जांदी है। तो साहब कहंदे ने चंगियां आईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण ऐसे कर्म जिन्हां दे उत्ते बुराई दी मोहर लगी हुई है, वो मनुख दूर चला गया। ऐसे कर्म जिन्हां दे उत्ते नेकी दी मोहर लगी हुई है, परमात्मा दे नेड़े चला गया। मनुख नूं वेख के असी अंदाजा ला सकते हैं, अगर इहदे आमाल शुभ ने, इहदे कर्म शुभ ने, तो ये बंदा परमात्मा दे निकटवर्ती है, ये बंदा अकाल पुरख दे नेड़े है। सानू कई दफा उस नाल याराना गणना पैंदा है जो किसी बादशाह दे नेड़े है, हुक्मरान दे नेड़े है, ते असी उसनू मान सन्मान देंदे हां भी ये ते राजे दे नेड़े है, ये ते हुक्मरान दे नेड़े है।
ਜਗਤ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨੇੜਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ स्वर्ग है। दूरी अंधकार है, नेड़ता प्रकाश। तलियां मलन तो इलावा और कुछ नहीं। जो मनुख जितना नेड़े नेड़े परमात्मा दे होंदा जाएगा, प्रकाश की दुनिया विच प्रवेश करता जाएगा। यह इंज कहो, कोई जितना अग दे नेड़ा होंदा जाएगा, अग उतनी उसनों झलसांदी जाएगी, तपांदी जाएगी। ते जो जितना हिमालय पर्वत दे नेड़े होंदा जाएगा, शीतल होंदा जाएगा, ठंडा होंदा जाएगा। जो जितना बगीचे दे नेड़े होंदा जाएगा, मुअत्तर होंदा जाएगा। ते जो जितना गंदगी दे ढेर दे नेड़े होंदा जाएगा, आखिर उत्थों दी बदबू दे नाल अपने दिल दिमाग नूं खराब कर बैठेगा। एक कुंठित वातावरण दे ओ फसेगा और दब के चीखेगा, औखा होवेगा। परमात्मा दे नेड़े होना सुंदर बगीचे दे नेड़े होना है। परमात्मा दे नेड़े होना सुख ते आनंद दे नेड़े होना है, और दूर होना अंधकार विच भटकना है। दूर होना नरक है। तो दरअसल ऐसा भी देखा गया है कि जो परमात्मा तो दूर है, किसी हद तक सब तो दूर हो जाता है। ओदी नेड़ता मां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पिता नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पुत्रा नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता भरावां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पड़ोसियां नाल भी नहीं होवेगी, प्रांत वासियां नाल नहीं होवेगी, देश वासियां नाल नहीं होवेगी। क्यों कि जो मूल मरकज तो दूर है, वो सब तो दूर हो जाता है। जैसे जो दरखत दी जड़ां तो दूर है, वो दरखत तो भी दूर है। ते जो मूल केंद्र मरकज परमात्मा तो दूर है, सब तो दूर है। इस तरह के पिता का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि बच्चों नाल इंसाफ करेगा जो परमात्मा तो दूर है। और इस तरह के भरा का की भरोसा जो परमात्मा तो दूर है। यकीन जानो ओ भरा भरा दे भी नेड़े नहीं, ओ पिता पुत्रां दे नेड़े नहीं, ओ पति पत्नी दे नेड़े नहीं है, और ओ पत्नी पति दे नेड़े नहीं है। नास्तिकता दे गुप अंधकार दे डुब के यूरोप ने ते होर अन्य देशां ने तजर्बा करके वेख लिया है कि परिवार बिखर गए ने। भरा भरा तो दूर हो गए, बच्चे मां बाप तो दूर हो गए, मां बाप बच्चियां तो दूर हो गए, और इतनी दूरी कि नेड़ता दिखाई नहीं देंदी। कारण की है? दरअसल जो मूल तो दूर हो गया, वो डालियां तो भी दूर हो गया। जो जड़ां तो दूर हो गया, वो पत्तियां तो भी दूर हो गया। जो परमात्मा तो दूर हो गया, वो जगत तो भी दूर हो जाता है। जो निरंकार तो दूर हो जाए, वो संसार तो भी दूर हो जाता है। कौन नेड़े है ते किहदी नेड़ता दे उत्ते भरोसा किया जा सकता है? दरअसल जो परमात्मा दे नेड़े है। शेख सादी ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत दा कहना है कि खुदा तरस बायद अमानत गुजार। जिहदे कोल धन दी, असमत दी, इज्जत दी, परिवार दी, मुल्क दी या कौम दी अमानत रखनी है, वेख लेना उसका खुदा तरस होना बड़ा लाजमी है। अगर वो खुदा दे नेड़े नहीं तो अमानत विच खयानत कर देगा। जो असमत उसनू सौंपी है, वो सही सलामत नहीं वापस लौटन लगे। जो दौलत उसनू सौंपी है, वो खयानत होगी। वो कौमी पद्धर ते खयानत करेगा, वो देश पद्धर ते खयानत करेगा। अमानत उसनू सौंपनी है। दरअसल जिहड़ा परमात्मा दे नेड़े है, खुदा तरस बायद अमानत गुजार। जो खुदा तरस नहीं ते खुदा दे नेड़े नहीं, परमात्मा दे नेड़े नहीं, दरअसल वो ईमान दे नेड़े नहीं। ते जो ईमान दे नेड़े नहीं होते बेईमान है, जो पतियों ते अंधकार दे है। लिहाजा इस तरह के मनुख का की भरोसा किया जा सकता है? तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, करमी आपो आपड़ी के नेड़े के दो। जैसे जैसे मनुखता परमात्मा तो दूर होंदी है, सुख तो दूर होंदी है। जगत दा कलेश, जगत दा दुख, संसार दी विपता इस गल दा सबूत है कि परमात्मा तो दूरी है, बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। हे ਰਾਮ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇਥੋਂ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। तो ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। जो दूर है वो पापी है, जो पापी है वो दूर है। दुष्ट, जालम, चोर, यार, बदमाश, गुंडे सारे इस श्रेणी च आ जाते ने कि सच तो दूर, परमात्मा तो दूर। सील, संजमी, दयालु, कृपालु, विशाल हृदय दे मालक, सम भावना रखण वाले, सम दृष्टि रखण वाले, इस तरह के जितने पुरुष ने ये नेड़े ने। अजोके संसार नूं वेख के कहना पैंदा है कि ये संसार जो कलयुग बन गया, ये संसार जो नरक बन गया, केवल सच दी दूरी दे करके, केवल परमात्मा दी दूरी दे करके। तो साहिब कहंदे ने कीते होए कर्मां करके कोई नेड़े है, कोई दूर है। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। जिन्हां ने नाम जपिया, नाम दे विच ध्यान जोड़िया, उन्हां ने अपनी मुशक्कत सफल कर लई। उन्हां ने अपनी घालना घाल लई, सफल कर लई। ते घालना दे चों यही सब तो वड्डी घाल है। अगर कोई संसारिक पद्धर दे ते सफल भी हो गया तो साहिब कहने उहदी घालना सफल नहीं हुई। दरअसल जो आध्यात्मिक पद्धर दे ते सफल हो गया, और कौन सफल होया है? जिन्हें नाम दे ध्यान जोड़ लिया है, जिन्हें शब्द दे सुरत जोड़ लई है। जिसने भी जोड़ लई है, महाराज कहने घालना घाल लई, उसने मुशक्कत सफल हो गई। मेहनत दा फल उसनों मिल गया। किसनों? जिसने भी नाम ध्याया है, भाव जिसने भी शब्द दे सुरत जोड़ी है, जिसने भी नाम दे ध्यान जोड़े। आखिर धर्म धुन ते ध्यान दी साधना है, शब्द ते सुरत दी साधना है। ते सुरत शब्द दे जुड़ गई, मानो जगत दियां तमाम घालना उन्हें घाल लईयां। सफलता ओदी झोली विच आ गई। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। इनू मुशक्कत क्यों आख्या, मेहनत क्यों आख्या? दरअसल जितनी भी घालना जगत दी घाली है, उस तो भी करोड़ा गुणा औखी है ये घालना कि कोई मनुख अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़े। बहुत वड्डी घालना है। वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलाप के उसे धुन दे कोई ध्यान जोड़े, इस तो वड्डी होर कोई साधना नहीं, इस तो वड्डी होर कोई घालना नहीं। और ये बहुत वड्डी मेहनत है, बहुत वड्डी मेहनत है। सब तो वड्डी मेहनत है तो इसका फल भी सब तो वड्डा है। क्योंकि ये मेहनत महा खड़ा होवेगा। ये जो नाम जपना है, इतनी वड्डी जो है साधना है, मेहनत है, इदा फल की है? इदा फल है परमात्मा। ते परमात्मा फल कैसा है? परम आनंद, परम रस, परम सुख, परम शांति, परम हलेमी ते समूह गुणा दा सार। तो साहिब कहंदे ने जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने सुरत नाम दे जोड़ी, जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां दी घालना सफल होई, दरअसल मुख उन्हां दे ही पवित्र ने। पानी दे नाल मुख नहीं पवित्र हुंदा। साबण पाउडर इत्यादि मलण दे नाल मुखड़ा पवित्र नहीं होंदा। अंदर दा क्रोध मुखड़े ते प्रगट होंदा है, अंदर दी नफरत मुखड़े ते प्रगट होंदी है, अंदर दी वासना मुखड़े ते प्रगट होंदी है, अंदर दा झूठ मुखड़े ते प्रगट होंदा है। पानी नाल मुखड़ा धोता है, लेकिन मुखड़े ते झूठ प्रगट हो रहा है, मुखड़े ते क्रोध प्रगट हो रहा है, मुखड़े ते काम प्रगट हो रहा है, मोह प्रगट हो रहा है, अहंकार दी प्रदर्शनी हो रही है मुखड़े दे राही, अखां दे चों, मत्थे दी तीवड़ियां दे राहों। समूह इसदा मस्तक दस रहा है, ये अहंकारी है, ये क्रोधी है, ये वासना दे ग्रसे होया है। तो इस तरीके दा जिहड़ा अपवित्र मुखड़ा है ते अपवित्र भाव जो मुखड़े ते प्रगट हो रहे ने, ये पानी नाल धो के नहीं दूर कीते जा सकते।
महाराज कहते ने ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो जैसे कोई नाम दे सुरत जोड़दा है, शब्द दे सुरत जोड़दा है, उसदा मुखड़ा इतना पावन, मुखड़े ते ही हलेमी प्रगट होंदी है, मुखड़े ते ही सच प्रगट होंदा है, मुखड़े ते ही समदृष्टि प्रगट होंदी है, मुखड़े ते ही संतोख प्रगट होंदा है, जिसनूं मेरे पातशाह कहंदे ने गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थिया। एक गुप्त लाल लभया है जो मस्तक ते प्रगट हो गया है। तो साहिब कहंदे जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दे ते मुख उजले होए, पर उन्हां दा सदका होर भी कईयां दे झूठ दे बंधन टुट गए। होर केती छुट्टी नाल होर भी कईयां दी बंद खलासी होई। जिवें किसे ने अपने कपड़ियां नूं सेंट लाया है ते ठीक है, उन्होंने ते खुशबू आ रही है, पर उहदे कोल भी जिहड़ा बैठ जांदा है उन्होंने भी खुशबू मिल जाती है। जिन्हें नाम जपिया है रास्ते उन्होंने मिले है, आनंद ते उन्होंने मिले है, पर उहदे कोल भी जिहड़ा बैठ जाता है उन्होंने भी कोई मस्ती मिल जाती है, उन्होंने भी कोई सुरूर मिल जाता है। ये हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। इस वास्ते नाम रसियां दी संगत विच बैठण दी सानू ताकीद कीती गई है ते नाम रसियां दी संगत विच बैठ के मनुख नूं नाम जपण दी प्रेरणा मिल जाती है। भी इहने सेंट लाया और ये मुअत्तर होया होया है, मैं भी लावां, मैं भी अतर लावां, मेरे विचों भी खुशबू प्रगट होवे। तो इस ढंग की प्रेरणा भगतां तो मिल जाती है, संतां तो मिल जाती है। साहिब कहंदे ने उन्हां दे ते मुख उजले ने जिन्हां ने नाम जपिया है, पवित्र ने, पावन ने, पर इन्हां पवित्र मुखड़ियां करके होर भी कई पवित्र मुखड़े हो गए, होर भी कईयां दे झूठ दे बंधन टुट गए, दुख दे बंधन टुट गए और उन्हां दी झोली सुख दे नाल भर गई। ये जपजी साहिब दा आखिरी श्लोक मोर, जिहदे च धर्म, गुरबाणी, सभ्यता, इंसानियत दा सार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन कर दिता है। सतगुरु रहमत करन कि हर मनुख दी जपजी साहिब नूं सुन के, अर्थ विचार नूं सुन के जपण दी भावना पैदा होवे ते हर मनुख दी ये घालना गुरु नानक देव जी महाराज सफल करन।